Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss thermodynamic properties in terms of partition function. So before that we already solved some of the distribution laws from the statistical thermodynamics, that nothing but the UL Maxwell-Boltzmann statistics. Followed that we are solved the Bose-Einstein and after that Fermi-Dirac. So in order to determine those all the statistics part, so in that we are going to see the most probable distribution law of the Maxwell Boltzmann constant, means your Boltzmann distribution law. So now those statistics we are going to be used, okay, in this actually particular partition function. Why? Because we can use the here Boltzmann distribution law and the related partition function to calculate the macroscopic thermodynamic properties. Okay, for example, such as your internal energy, then molar heat capacity, then your A will be your Helmholtz function is nothing but the work function, then these are the actually Gibbs free energy, means free energy of the Gibbs function, then enthalpy and the pressure, etc. So these are the actually thermodynamic properties we are going to calculate in terms of partition function by using the Boltzmann distribution law. Boltzmann distribution law, first of all you should first know that things. So Boltzmann distribution law is nothing but that the number of particles, okay, which is present in the system, they are going to be distributed in n number of energy levels. So these are the actually basic theory part of the Boltzmann distribution law, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हाउ दे आर गोइंग टू बी अरेंज इन द वेरियस एनर्जी लेवल. तो वो चीजें हम लोगों ने स्टडी किया था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में. सो उसके कुछ बेसिक फंक्शंस है, ठीक है, उसके कुछ बेसिक इक्वेशन है. सो बाय यूजिंग दैट इक्वेशन वी डिराइव ऑल दीज एक्चुअली थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नाउ ओवर हियर. So in order to, if you are not going to see my previous video students, so first you can see that video, then and then only you should understand this video, because to in order to determine all these thermodynamic properties in terms of partition function, first we should aware some of the basic equation of the your statistic, means Boltzmann distribution law, then and then only you are able to solve this thermodynamic property. So सबसे फर्स्ट जो मेजर की जो की पॉइंट है वो है कि ये हमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या करना है, सॉल्व करना है. तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पार्टीशन फंक्शन. तो फर्स्ट ये पता होना हमें चाहिए कि पार्टीशन फंक्शन होता क्या है. सो पार्टीशन फंक्शन इट इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ द व्हाट यूर क्वांटिटी और द वन टाइप ऑफ द एंटिटी, जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मोलर पार्टीशन फंक्शन, ऑल्सो समटाइम मॉलिकुलर पार्टीशन फंक्शन भी बोलते हैं, विच इज एक्चुअली वी आर यूजिंग फॉर द 1 मोल और फॉर एवोगेड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, तो उसे हम लोग कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल सिंबलाइज एज अ क्यू. तो ये हुआ आपका पार्टीशन फंक्शन, एंड दैट पार्टीशन फंक्शन विच इज नथिंग बट दी समेशन ओवर आई जी आई ई रेज बाय पावर बीटा एप्सिलॉन आई. अब यहाँ पे जी आई का मतलब है स्टूडेंट, इट इज अ डीजेनरेसी टर्म विच इज गिव द व्हाट स्टैटिस्टिक वेट फैक्टर, और समटाइम वी कैन कॉल इट एज व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी. तो जी आई का मतलब है कि आपके जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल जो सिस्टम में प्रेजेंट है हाउ दे आर गोइंग टू बी डीजेनरेट. ओके, तो उसे हम लोग यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं बाय जी आई, एंड देन बीटा एंड एप्सिलॉन आई. एप्सिलॉन आई का मतलब है यहाँ पे एनर्जी टर्म, ठीक है. तो ये होल इक्वेशन जो आपको सबसे पहले इनिशियली पता होना चाहिए टू ऑर्डर टू मेंटेन योर ऑल द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो आपको कैलकुलेट करना है. सो दिस इज योर फर्स्ट इनिशियल इक्वेशन वन, दैट यू शुड नो दैट व्हाट इज अ पार्टीशन फंक्शन. सो द पार्टीशन फंक्शन इज नथिंग बट द क्यू समेशन ओवर आई जी आई ई रेज बाय पावर माइनस बीटा ई आई. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग. अभी ये जो सब प्रॉपर्टी जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन व्हाट यूर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इक्वेशन, जो मैंने मेंशन किया. बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज नथिंग बट व्हाट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी अरेंज इन द वेरियस एनर्जी लेवल. सो एन आई, ये इससे हम लोग डिनोट करते हैं. सो एन आई इज विल बी द व्हाट योर नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द सिस्टम विच इज गिवन बाय द कैपिटल लेटर एन. अब कैपिटल लेटर एन हियर इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है. देन जी आई रेज ई रेज बाय पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई डिवाइडेड बाय क्यू. मतलब ये होल वैल्यू जब हम लोग पार्टीशन फंक्शन से डिवाइड करते हैं तो वो इस होल टर्म को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ व्हाट इक्वेशन. चाहिए तो ये इक्वेशन हम लोगों ने कैसा डिराइव किया है
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ, आप एक बार वो वीडियो पर्टिकुलरली देख लेना दैट व्हाट इज एग्जैक्टली बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, सो ये दो इक्वेशन हमारे बेसिक बने। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन आता है, बिकॉज वी स्टडी अबाउट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, सो डेफिनेटली सिस्टम हैज टू बी देयर। तो सिस्टम है, तो सिस्टम में हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं और सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक है। तो जैसे कि द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ओके प्रेजेंट इन द सिस्टम दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट विच इज गिवन बाय कैपिटल लेटर एन, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, वो होता है आपका समेशन ऑफ द व्हाट यूर नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे मैंने बोला था एन आई का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, जो सिस्टम में कितने पार्टिकल है उसका अगर मैंने समेशन किया तो वो है सम ऑफ मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल विच प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो हमें मिला इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट इक्वेशन है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो भी तो हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पे बनता है आपका टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अगेन कांस्टेंट विच इज गिवन बाय कैपिटल लेटर ई समेशन ओवर आई एन आई एंड द एप्सिलॉन आई। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी ऑफ द यूर सिस्टम। सो समझ मतलब यहाँ पे ये एनर्जी स्टेट, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आई हैव द व्हाट एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मान लीजिए n0 n1 n2 n3 एंड सो ऑन एन आई तक हमारे सारे ये नंबर ऑफ पार्टिकल। अब वो कहाँ पे स्टेट हो रहे हैं, हाउ दे आर गोइंग टू बी प्लेसिंग, सो एनर्जी लेवल E0 E1 then E2 then E3 up to EI, so this will be the energy set। so इनका समेशन मतलब EI, इनका समेशन मतलब NI, so I am going to be when together combinedly, so you will get over here total energy of the system and how they are going to be distributed। okay, तो वो टर्म होता है डीजेनरेसी मतलब GI फैक्टर। तो ये हुआ यहाँ पे G0 G1 G2 and up to the GI। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाई ऑल द पार्टिकल। तो ये बेसिक इक्वेशन सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है। इक्वेशन 1 पार्टीशन फंक्शन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इक्वेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो आफ्टर नाउ नोइंग ऑल दिस बेसिक इक्वेशन वी मूव फर्दर। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पर जो बीटा वैल्यू है दिस इज एक्चुअली व्हाट यूर लैग्रेंजेस मेथड अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया था। तो बीटा का वैल्यू होता है विच इज हैविंग वैल्यू -1 अपॉन KBT। ओके, अब इसे हम लोग अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका मतलब कैलकुलेटेड जो मैथमेटिकल जो वैल्यू है डोंट है। तो ये KB का मतलब क्या है, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T विल बी द टेम्परेचर। ओके, तो ये सिस्टम अगर हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट किया सो यू विल गेट द बीटा वैल्यू ओवर हियर। तो ये बीटा की वैल्यू यहाँ पर है। तो इक्वेशन 1 2 3 4 5 नाउ वी आर यूजिंग टू फाइंड आउट दिस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। बराबर, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, द इक्वेशन 2 विच इज व्हाट यूर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो नाउ पुट दिस इक्वेशन 2 इनटू द व्हाट यूर इक्वेशन 4, मतलब एनर्जी का जो टर्म है इसमें हमें क्या करना है, इन द प्लेस ऑफ NI वी आर गोइंग टू बी पुट दिस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इनटू द इक्वेशन 4, देन व्हाट इक्वेशन यू विल गेट E। तो अब ये है हमारी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो हमें कैलकुलेट करना है। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन the internal energy of the system in terms of partition function, what you are going to do, you are just supposed to put this Boltzmann distribution law equation number 2 in equation 4, so you will get now equation number 6। अब फर्दर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ व्हाट थिंग्स, अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बिकॉज हमें क्या करना है, दिस प्रॉपर्टीज हमें सॉल्व करनी है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। सो टू इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस पार्टीशन फंक्शन मीन दिस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर, दिस पार्टीशन जो फंक्शन है हमारा Q, इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, पार्टीशन फंक्शन को। सो जस्ट टेक अ लुक विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, नाउ दिस पार्टीशन फंक्शन हैज टू बी डिफ्रेंशिएट। सो नाउ the differentiation is carried out at constant volume since the energies epsilon I depend upon the volume। okay, तो वो हम लोग आगे यूज करेंगे। हेंस जो Q जो है हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो यू विल गेट द समेशन ओवर I GI E रेज बाय पावर माइनस, नाउ यहाँ पे देख लो क्या आएगा, EI एप्सिलॉन I अपॉन KBT इन द ब्रैकेट एप्सिलॉन I अपॉन KBT स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन T स्क्वायर। तो हम लोगों ने जो डेरिवेशन सॉल्व किया, आई होप सो डेरिवेशन सबको आता है। सो यू विल गेट नाउ इक्वेशन नंबर 7।
ठीक है. सो वंस यू विल गेट हियर इक्वेशन नंबर 7, व्हाट यू आर नाउ नेक्स्ट थिंग विल बी द यू आर गोइंग टू टेक रीअरेंज दिस इक्वेशन. अब हम लोगों ने रीअरेंज कैसे किया. नाउ दिस एक्चुअली KBT स्क्वायर, ठीक है, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म हम लोगों ने इस साइड से कहाँ पर लिया, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो व्हाट यू विल गेट दैट KBT स्क्वायर व्हाट डेल Q अपॉन डेल T इज इक्वल टू समेशन ओवर I GI e raised by power what minus epsilon I KBT. So you will get here equation number 8. So we only rearrange what your equation number 7 and you will get here equation 8. So now after getting the equation 8, now what will be the your next work, that from equation 6. Now just take a look from equation 6 हमें ये पता है, ठीक है. तो equation 6 अभी हम लोगों ने क्या किया, rearrange किया. Now why we are going to be rearrange, look over here that equation 7 when we are going to be rearrange, तो हमें ये टर्म मिला. कौन सा टर्म मिला, ये टर्म मिला. If I am going to be now compare the equation number 6 and your equation number 8, तो equation number 6 का ये वाला पार्ट और equation number 8 का ये वाला पार्ट, both are similar, only these factors are going to be what, different. तो ये कब क्या करेंगे, equation 6 में जो ये वाला factor जो right hand side, we are going to be shifted towards the what, left hand side. So after rearranging the equation 6 you will get this equation, ठीक है. अब हमें देखो यहाँ पे जो इक्वेशन 8 में ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिमिलर है. सो नाउ दिस एक्चुअली इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू बी अरेंजिंग फ्रॉम इक्वेशन 6 वी आर गोइंग टू बी पुटिंग इनटू द इक्वेशन 8. देन व्हाट यू विल गेट दैट KBT स्क्वायर डेल Q अपॉन डेल T. अब ये होल इक्वेशन आपको क्या मिला, दैट EQ अपॉन N. तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आफ्टर द रीअरेंजमेंट योर हमें इंटरनल एनर्जी में इंटरेस्ट है, सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर सिर्फ E को ही रखेंगे. सो द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू N, यहाँ पे चला जाएगा तो ऊपर आएगा, Q अपॉन नीचे आएगा, सो N अपॉन Q KBT स्क्वायर डेल Q अपॉन डेल T. सो दिस इज योर नाउ इक्वेशन नंबर 9. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमें क्या करना है, इंटरनल एनर्जी हम लोगों ने कंसिडर किया था, तो उसका हम लोगों ने डिफरेंशिएशन लॉग निकाला. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट E इज इक्वल टू N KBT स्क्वायर, ओके, जो Q का पार्टीशन जो फंक्शन था उसे हम लोगों ने वैल्यू निकाला, तो हमें यहाँ पे मिलेगा D ln Q अपॉन डेल्टा T. मतलब जो हमारा पार्टीशन जो फंक्शन था, जो Q की हमारी जो यहाँ पर जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू थी उसे हम लोगों ने ये क्या किया, कैलकुलेट किया. सो फाइनली यू विल गेट नाउ इक्वेशन 10 ओवर हियर, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, ये जो सिस्टम है हम लोग स्टडी कर रहे हैं फॉर व्हाट यूर 1 मोल. सो यहाँ पे क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म जो है हमारा NaNKB, that will be the considered as what your R means gas constant value, ठीक है. तो ये अब वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. सो योर इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट दैट RT स्क्वायर D ln Q अपॉन डेल्टा T. सो यू विल गेट नाउ इक्वेशन नंबर 11 and these are the actually what your thermodynamic properties in terms of partition function means which thermodynamic property, internal energy in terms of what your partition फंक्शन. तो Q आपका क्या है, पार्टीशन फंक्शन है. सो दीज आर द एक्चुअली योर फर्स्ट कैलकुलेशन पार्ट. अब नाउ नेक्स्ट विल बी द वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेट द मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी विल बी सिम्बोलाइज एज व्हाट यूर CV. अब मोलर हीट कैपेसिटी का सबको पता होना चाहिए, बेसिक इक्वेशन होता है आपका व्हाट डेल E अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है. अब E जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. E की वैल्यू क्या है आपके पास, RT स्क्वायर D ln Q अपॉन डेल्टा T. तो एज सच हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस करा डेल अपॉन डेल्टा T. E की जो वैल्यू है ये यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट में डाल दी, इक्वेशन नंबर 11 एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू जो है बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, R विल बी द कांस्टेंट वैल्यू, सो वी टेक आउटसाइड द बॉक्स. सो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, सिर्फ R डेल अपॉन डेल T स्क्वायर D ln Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इसका डिफरेंशिएशन लॉग पार्ट अगर हम लोगों ने लिया तो हमें फिर वॉल्यू क्या यहाँ पर फाइनली मिलेगी. इन ऑर्डर टू सॉल्व फर्दर दिस मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन यू विल गेट R अपॉन T स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल स्क्वायर ln Q अपॉन डेल 1 अपॉन T स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो आप अगर ये इक्वेशन लिखो या फिर ये इक्वेशन कंसिडर करो, बोथ आर गिविंग द व्हाट यूर मोलर हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यूर पार्टीशन फंक्शन. सो इट्स वेरी सिंपल. तो आपको यही सिर्फ याद रखना है टू इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ऑल द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द व्हाट यूर इंटरनल एनर्जी ऑफ द योर
thermodynamic system in terms of partition function. Once you will get the E, तो आप further सारे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट ओवर हियर वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेट द एंथैल्पी. ठीक है. अब एंथैल्पी का बेसिक इक्वेशन होता है दैट H इज इक्वल टू व्हाट, E प्लस PV. अब ये हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है तो वही हम लोग वैल्यू डालेंगे. अब ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, दैट H इज इक्वल टू N kBT स्क्वेयर व्हाट, D ln Q अपॉन डेल्टा T प्लस PV. और इसके प्लेस पर अगर आप लोगों ने ये भी यहाँ पे कंसिडर किया दैट H इज इक्वल टू RT स्क्वायर डैन लैन क्यू dt प्लस PV, तो भी आपका आंसर राइट होगा. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी कैलकुलेट द एंथैल्पी. तो ये है आपकी एंथैल्पी प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर आपकी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एंड द वर्क फंक्शन A. अब A का बेसिक इक्वेशन होता है E माइनस TS. ठीक है. तो A जो है E की एन वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज व्हाट यू आर N kBT स्क्वायर D ln Q dt. तो वही हम लोग यहाँ पर प्लेस करें माइनस T. अब यहाँ पे जो है एंट्रोपी टर्म, तो एंट्रोपी पहले तो हमें पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन, मीन्स इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन उसकी वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे द एंट्रोपी S जो है विच इज ऑलरेडी गिवन बाय दिस बेसिक इक्वेशन, दैट इज KB मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट N ln Q प्लस E अपॉन T. अब यहाँ पर जो E की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी जो कैलकुलेट की है वो हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस की. तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा इसका वो क्या होगा आपका KBN ln Q प्लस N KBT D ln Q डेल्टा T. अब ये जो कैलकुलेटेड एंट्रोपी जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू बी पुटिंग ओवर हियर इनटू द व्हाट योर वर्क फंक्शन. तो आपको ये पूरा होल टर्म मिल जाएगा. सो ना आफ्टर गेटिंग दिस होल टर्म, यहाँ पर आप अगर देखोगे N kBT स्क्वायर कॉमन है, कैंसल हो जाएगा. तो रिमेनिंग यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, ओनली माइनस N दिस KB एंड T, और बचा क्या यहाँ पर ln Q. तो ये दो सम जो टर्म थे, बिकॉज माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो ये बनेगा क्या माइनस, सो प्लस माइनस बोथ द टर्म गेट कैंसल. तो ये आपको यहाँ पे फाइनली मिला वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन विच इज माइनस N kBT ln Q. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें सॉल्व करना है वो है गिव फंक्शन, मतलब G वैल्यू. अब G का बेसिक इक्वेशन होता है इन थर्मोडायनामिक्स H माइनस TS. अब H हमें पता है एंथैल्पी इज नथिंग बट व्हाट यू आर E प्लस PV. Put here the E plus PV. Now हमें ये पता है that the E minus TS is nothing but what your work function. तो E minus TS is nothing but the A work function डाला. तो फाइनल हमें जो गिव फंक्शन मिला वो क्या मिला यहाँ पर A plus PV. ठीक है. अब हेल्महोल्ट्ज जो है यहाँ पर फंक्शन ये की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है वो माइनस N kBT ln Q. Just put over here. So therefore the gives means free energy G is equal to minus N kBT ln Q plus PV. So these are the actually what your thermodynamic properties, means free energy in terms of partition function. So this is how you are going to be solve all the thermodynamic properties in terms of partition function just by calculating the first of all internal energy. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, you must have to calculate the internal energy of the system. तो internal energy of the system will be what your equation 10 you can say or the equation 11. ठीक है. So once you will get this internal energy, so you have to just put these all the value into the your any another thermodynamic properties. But to get the each and every thermodynamic properties, फर्स्ट यू शुड हियर सी प्रॉपरली. हमें सबका बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एंथैल्पी का बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए दैट H इज इक्वल टू E प्लस PV. वर्क फंक्शन का बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए E माइनस TS. फ्री एनर्जी का बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए H माइनस TS. एंट्रोपी का बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए. उसके बाद ही हम लोग जो A का जो भी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग उसमें पुट कर सकते हैं. इफ यू आर नॉट remember this basic equation then you cannot put the energy internal energy value into this particular equation. So ये आपको बेसिक याद रखना है. एंड सबसे लास्ट में in order to determine this internal energy, okay, these thermodynamic properties in terms of partition function, first you have to remember which basic equation. These are the 1 2 3 4 5 basic equation you should remember. That will be what your Boltzmann distribution law, partition function equation value and the total number of particles and total energy of the system. ये basic equation आपको पता होने चाहिए. Then and then only you are able to calculate the internal energy of the
system. So this is how we are going to be calculate all the thermodynamic properties in terms of what your partition function. सो आई होप सो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि हमें यहाँ पे कौन से बेसिक इक्वेशन को याद रखना है और कैसे हमें इक्वेशंस को पुट करना है, कौन से इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन हमें ऐड करना है. बट स्टिल स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस इक्वेशन, so you should ask me. I definitely resolve your all the problems. Okay, so once again thank you so much watching this video. If you really like this video, so don't forget to subscribe us. So thanks a lot.